آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس اتفاق رائے پہ پہنچے ہیں، جس کنسنسس پہ پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI نے، اس اتفاق رائے کے نتیجے میں مزید اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف سے رائیونڈ میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مل رہا ہے، ہمیں بھی کھانا کا دعوت دیا گیا ہے اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا کنسنسس بنا ہے، وہ کنسنسس کل JUI، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ یہ کنسنسس نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور JUI اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو، مگر ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں بھی اس اتفاق رائے میں شامل ہو، اور اگر یہ ممکن ہے، یہ ہوتا ہے، تو یہ ہماری آئین سازی کی عمل کو قوت دے گا، طاقت دے گا، اس سے بہتری آئے گی، اس سے کوئی کمزوری تو نہیں آئے گی۔ تو ہم بھی دعا گو ہے کہ اس مشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم سب کا جو مقصد ہے، جو فوکس ہے، وہ نہ کوئی پرسن سپیسیفک ہے، نہ وہ وقت کے مطابق کوئی پابندی ہے۔ ہمارا زور، پاکستان پیپلز پارٹی کا زور، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا زور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے عوام کا مسائل کا حل نکالنا ہے، جو آئین سازی کرنا ہے، غیر متنازع طریقے سے کرنا ہے، سب کا مفاد کے لیے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کا تفصیلی ملاقات کے بعد میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان بنا ہے، ہمارا امید ہے کہ جو وہ حتمی آخری بل جو اسمبلی سے پاس ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا۔ تو ہم یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے، یہ مختلف پاکستان کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح کے مسائل ہو، کشمیر سے لے کے فلسطین تک، اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی سیاسی اسپیسیفکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں، لیکن جو ملک کے مفاد میں ہے اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں۔ تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا۔ ہم ایک دوسرے کے، میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان کی بڑوں نے میرے بڑوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کام کر سکوں گا، اور آگے جا کے جو آنے والے نسل ہے ہم لمبا اننگز کھیل سکیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ ملازم آپ نے بہت انتظار کیا، بہت شکریہ۔ اتہاں ادا پوچھی بچو ایکڑو، اتہاں پوچھی بچو، پھر ادھر آتے ہیں۔ دو سوال ہیں چیئرمین صاحب، اتنا عرصہ تھا یہ حجاب کی کیفیت تھی، آئینی ترامیم کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے آج قوم کے لیے کہ JUI اور پیپلز پارٹی بالآخر ایک اتفاق رائے پر پہنچ گئے۔ کیا آپ کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے؟
आवाम से कि कौन से पॉइंट हैं जिस पे आप दोनों पार्टीज किसी एक नतीजे पे पहुंचे हैं जिस पे नून लीग को शामिल करना है? मैं समझता हूँ कि मुनासिब ये होगा कि जब हम कल मिल रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो हम अपना किसी बात को आपके सामने रखना शायद मुनासिब नहीं होगा। उम्मीद ये है कि हम उनके साथ बैठ के मज़ीद कंसेंसस बनाएंगे और उस कंसेंसस पे जब हम सब उसी इत्तेफाक राय के हामिल हैं तो उसी इत्तेफाक राय के साथ हम वो कंसेंसस आपके सामने रखेंगे। अच्छा मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप आईनी बेंच का जिक्र किया करते थे, पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की बात कर रही थी, तो अब ये इत्तेफाक राय बेंच पर हुआ या अदालत पर हुआ? क्योंकि कौम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है इस एक नुक्ते पर। बेटा हमने भी बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए हैं। यही सवाल इन्होंने किया, आपने दूसरे लहजे में सवाल किया, तो जवाब वही है जो बराबर सामने दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों सरगर्म है, नून लीग क्यों नहीं सरगर्म? आपने क्यों पहल की कि ये आईनी तरमीम हो, या आपको कोई डायरेक्शन थी इस तरह? हम एक तो आपके ये जो फ्रेमिंग है कि नून लीग सरगर्म नहीं थी, उस पे मैं आपसे इत्तेफाक राय नहीं करता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग अपनी तरीके से सरगर्म तो थे, हमारा तरीके कुछ और है, उनके तरीके कुछ और है, तो वो तो ऐसे कोई बात ही नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप मेरा अपना शायद जोश और जज्बा देखते हुए आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैं काफ़ी कमिटेड हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि चार्टर डेमोक्रेसी के जो कंपोनेंट्स रह चुके हैं उस पर मैं अमल दरामद करना तो ज़रूर चाहूँगा, और वो सिंपली इसलिए कि मेरी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये वादे किए। तो जब भी मुझे ये लगेगा आज की सूरत हाल में या आने वाले कल कि शहीद बीबी का कोई वादा पे मैं अमल दरामद कर सकता हूँ, तो वैसे ही मैं मैदान में उतर पाऊँगा। ऐसे तो कोई आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। मंजर भाई आप पूछ रहे हैं। मौलाना साहब, आपने शदीद शुरू में मुखालफत करी आईनी तरामीम की, अब जबकि आपका और पीस पार्टी का समझौता हो गया है, तो क्या आप समझते हैं कि आपने ऐसा समझौता या तरमीम तैयार कर दी है कि पीटीआई भी उसमें जो है वो आपके साथ हिस्सा बन जाएगी और मुत्तफिका तौर पर ये तरामीम मंजूर हो जाएंगी? पहला सवाल। फिर दूसरा, चेयरमैन साहब बड़ी जल्दी में लग रहे थे, इतनी जल्दी क्या थी आपको आईनी तरामीम पास कराने की, कि अंदर की बात बताएं, क्या मसला था? देखिए, जहाँ तक तो आप दोबारा कर अपना पहला सवाल दोबारा दोहरा दें उनसे। जी, आईनी तरामीम में जाहिर बात है आपका इनसे इत्तेफाक हो गया है, लेकिन आपने शदीद मुखालफत की। ये 10-15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि आप राजी हो गए और पीटीआई आपको इस तरह सपोर्ट करेगी? नहीं, ये बात आप जहन से निकाल लें। जो पहला मसौदा है जिसको हमने मुस्तरद किया है, उसको आज भी मुस्तरद करता हूँ और कल भी काबिल कबूल नहीं। और हमने जब अपनी तजावीज़ मुरतब की हैं तो उन तजावीज़ पर जो हमारी बातचीत हुई है, पीपल्स पार्टी भी एक ड्राफ्ट बना चुकी थी, फिर हमने भी बनाया, उनको हमारे सोच का अंदाज़ा था, बातें हुई थी, मुलाकातें हुई थी, उन्होंने भी उसके करीब करीब एक मसौदा तैयार किया। आज हमने वो जगह तलाश की जहाँ पर कि हमारा थोड़ा फ़र्क था, उस फ़र्क को आज हमने मिटाने में कामयाब हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून से भी हम यही तवक्को रखेंगे कि इस आइन को हमने महफूज रखना है, जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को हमने ताकतवर बनाना है, मुल्क के सियासी निज़ाम में एतमाद पैदा करना है। तो हर चंद के बहुत नुकसानात हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से हम इन नुकसानात को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आज हमें संजीदगी के साथ इन सारी चीज़ों को सोचना होगा ताकि आइन महफूज रहे, वो किसी का खिलवाड़ न बन सके। पार्लियामेंट को आइंदा के लिए मजबूत बनाने के लिए किस तरह हमें काम करना है, ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं। अपना घर जब तबाह होता है तो ख़ुद ही उसको दोबारा तामीर करना होता है, लोग आकर आपके लिए आपका घर नहीं बनाएंगे। तो अगर मुल्क है, पार्लियामेंट है, आइन है, तो उसके लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है। हम पहले भी पाकिस्तान के आइन के साथ थे, मुल्क के साथ थे, और आज भी अगर हमने सोचा कि ये जो तरमीम आई है और इसका जो पहला मसौदा है वो काबिल कबूल नहीं, तो वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है।
اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ ہم اس پہ خوش ہیں. Thank you. ایک سیکنڈ جی کس بات کا جواب دے رہا ہوں میں؟ مفصل جواب جلدی میں کیوں جو وہ کہہ رہے ہیں؟ او میں جلدی میں تو بالکل نہیں. اب میں تو انتظار کر رہا ہوں 2006 سے، تو 2006 سے جو انتظار کرتے کرتے 2024 تک پہنچتے ہیں وہ آدمی تو جلدی میں نہیں ہوتا. آج بھی اگر ایک دو دن یا اس سے تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو میں انتظار کرنے کی. مولانا صاحب تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھیں آپ سے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن آج اتفاق ہو گیا تو آپ نے کہا پچھلا مسودہ تھا اس کو آپ آج بھی مسترد کرتے ہیں، تو آپ نے کہا اس پہ اتفاق نہیں ہوا تو ہم اس کو ریلیز پہ نہیں کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ابھی آپ نے اتفاق کیا جس مسودے پر دیگر سیاسی جماعتوں کو اس پہ اتفاق کروا دیں گے؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تجاویز جس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ ان سے مخفی نہیں ہے. ہم نے ان کے سامنے اپنا جو تجاویز کا خاکہ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ہم مزید بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں، اور اب جس چیز کی طرف اتفاق کرایا جائے گا وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم پورے ایوان کا کنسنسس حاصل کر سکیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ اس 26ویں آئینی ترمیم کا جو محور ہے یا جو بنیادی نقطہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت، میں اس پہ آ رہا ہوں، آپ مائک کی طرف ہے اس لیے میں آپ بات کریں، میں اپنا مائک فکس کرتا ہوں. بنیادی محور وفاقی آئینی عدالت ہے، تو آج کے ڈرافٹ میں یہ تو سمجھا جائے نا کہ آپ اور مولانا صاحب وفاقی آئینی عدالت پہ تو متفق ہے نا؟ آج کے ڈرافٹ پہ یہ سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں. ہم نے تو ایک اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں. اس اتفاق رائے، اس کا سینسس کا باقاعدہ اس کا شکل کیا ہوگا، اس کا الف بے پہ فل سٹاپ کاما کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اپنے اسمبلیز کے تھرو پاس کروانا چاہتے ہیں. چیئرمین صاحب آپ 2006 سے اس کا ویٹ کر رہے ہیں آئینی عدالت کا، لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی مساق جمہوریت انہوں نے بھی دستخط کیا تھا، عمران خان نے بھی کیا تھا، لیکن کیا بات آ گئی کہ یہ ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں 2006 کا جو مساق جمہوریت کا آئینی عدالت کا جو آپ نے بل تیار کیا تھا اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ اور مولانا صاحب کیا فائز عیسیٰ پہ آپ تیار ہو گیا آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس بنانے کے لیے؟ یہ بھی ذرا بتا دیں. اپنے سوالات مختلف زاویوں سے بار بار نہ کیجیے. آپ جو چیز ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں ایک بات ذرا ریکارڈ درست کرانے کے لیے کہہ دوں، جمعیت علماء اسلام وہ میثاق جمہوریت کا دستخطی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے. بعد میں بہت سے فورمز ایسے آئے کہ جہاں پر جو ریزولوشنز پاس ہوئے انکلوڈیڈ بائی COD، چونکہ وہ ہم نے منظور کیے ہیں تو ظاہر ہے جس طرح کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ COD کے اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے، ہم بھی اخلاقی طور پر اس پر پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ کاز جو ہے یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی کا اب نہ رہا، مسلم لیگ نون کا نہ رہا، بلکہ عمران خان، ہم سب لوگ جتنے بھی مختلف مواقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان فورم پر قراردادیں آئی ہیں، اور اس پہ COD جو ہے خاص طور پر جب لندن میں آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف صاحب نے بلائی تھی تو اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ COD کا اس میں ذکر ہے اور ہم سب موجود تھے اس میں. تو یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ اصولی باتیں جو ملک کے لیے ہوتی ہیں، جمہوری نظام کو، آئینی نظام کو، آئین کی بالادستی کے لیے، تو یہ اچھی باتیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، تو اس میں ایک اتفاق رائے ہوا کہ اختلاف رائے کریں گے، گرائیں گے نہیں ایک دوسرے کو. تو اس طریقے سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم نظام چلے، اور جو ہمارے نظام کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جائے. کامران مولانا صاحب سے تو آپ کی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن، تو باقی
हम सब वैसे बाकी सियासी जमातों से आम तौर पे बात भी करते हैं। इस आइन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो तजवीज़ है उस पे अपने नुमाइंदे के मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के पास भेजे हैं, सिविल सोसाइटी के पास गए हैं, मैं ख़ुद बार एसोसिएशंस के पास तो किया हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सवाल है, हमने जो हाई पावर्ड पार्लिमानी कमेटी बनाया जिसमें तमाम सियासी जमातों को बराबरी की नुमाइंदगी दी, वो इसलिए हमने सोचा कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, एक मुनासिब जगह होगा जहाँ अगर वैसे तो आम तौर पे तरीके इंसाफ हमसे तो हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं होते, बात करने के लिए तैयार नहीं होते, मगर इस फोरम जबकि मौजूद है तो ये फोरम के थ्रू हम एटलीस्ट कम से कम वहाँ एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की जमात उनके साथ ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे होते हैं, इनके तो बात मुसलसल चलता है और ऑब्वियसली अगर इस पे पीटीआई कंसेंसस के लिए ओपन है तो मैं भी चाहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब उनको कायल करे, बिकॉज़ इससे मैं तो हमेशा से ये समझता था कि पीटीआई को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए और जो उनके ज़ाती इश्यूज़ है या सियासी इश्यूज़ अपनी जगह, वो जो मुल्क के मसले हैं उस पे अपने इनपुट ज़रूर दें। तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब उनसे इनपुट ले सकते हैं तो उसको मैं वेलकम ही करूँगा। मेरा सवाल मौलाना साहब से, मौलाना साहब ये जैसे आपने अभी फरमाया कि मुझे पहले वाले मसले पे एतराज़ था और मैंने उसको पहले भी मुस्तरद किया, अभी भी मुस्तरद करता हूँ, तो आप ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कि आपको उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे आपको एतराज़ था और अभी भी है। और मेरा चेयरमैन साहब से ये सवाल है कि ये बताइएगा कि जिस तरह आप मौलाना साहब को बनाने में कामयाब हो गए, आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि दीगर जमातें भी आपसे मुत्तफिक हो जाएंगे, आप उनको जारी करेंगे अपने ड्राफ्ट। एक बात जो मेरे ख्याल में बड़ी संजीदा अंदाज में आपने की है, मनाने में कामयाब हो गए। किस चीज़ पे मनाना है? क्या इन्होंने मेरा कत्ल किया है या मैंने उनका कत्ल किया है? मैंने उनकी चोरी की है, उन्होंने मेरी चोरी की है, उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैंने उनको नुकसान पहुंचाया। दोनों अलग अलग सियासी पार्टियां हैं, अलग अलग उनकी शनाख्त है, अलग अलग उनका मंसूर है, अलग अलग उनके फोरम हैं, अपने फ़ैसले हैं और सियासी जमातों में इख्तिलाफ के बावजूद मुल्क एक है, कॉज एक है, इत्तेफाक राय पैदा होती भी हैं, इख्तिलाफ भी पैदा होते हैं। तो आज अगर हम लोगों ने कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक किया है तो वो एक मामूल की सियासत का हिस्सा है और ये रहना चाहिए, ये हमारी सियासत का हुस्न है। हम इस सिलसिले में चाहेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन सब मिलकर एक आईनी तरमीम की तरफ जाए। आखिर 18वीं तरमीम भी तो हमने मिलकर की थी, हुकूमत वाले भी और अपोजिशन वाले भी सब ने मिलकर की थी। और जब आइन बना था तो उस वक्त भी तो तमाम पार्टियों ने मिलकर आइन बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि उस आइन की रोशनी में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले से पहले सदर पाकिस्तान थे और उसमें मेरे वाले साहब शरीक थे, खान अब्दुल वली खान शरीक थे, प्रोफेसर गफूर शरीक थे, चौधरी ज़ुहूर इलाही साहब शरीक थे, महमूद अली कसूरी शरीक थे और बलोच रहनुमा उसमें शरीक थे, बहुत बदुंजो साहब उसमें शरीक थे। तो इस तरीके से उस ज़माने में भी कुछ चीज़ें वो होती हैं कि आपको तमाम पार्टियों को मिलकर सोचना होता है कि वो मुल्क का मसला होता है, वो किसी पार्टी के ज़ाती मसाइल नहीं हुआ करते। तो आज भी सूरत हाल जब ऐसी बनी है कि आइन का मसला सामने आ गया है तो आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना ये तमाम हमारी मुहिब वतन जमातों की एक ज़िम्मेदारी बनती है। और मैं सोचता हूँ कि हमने जो पार्लियामेंट को कमज़ोर करना, आइन को कमज़ोर करना, मुल्क को कमज़ोर करने वाली जितना मवाद उसके अंदर था उस सारे को हमने अगर निकालने में कामयाब हो गए हैं तो फिर यही बेहतरीन सियासत है और यही मुल्क की वफादारी की अलामत है। चेयरमैन साहब ये बता देगा कि मुख्तसर नज़र में वसी तरीन इत्तेफाक राय से कैदी नंबर 804 को फ़ायदा होगा
या नुकसान होगा, और ये भी बता देगा ये जो तरमीम है ये 25 तारीख से पहले जो है पास हो रहेगी, उसके बाद कोई मैं डेडलाइन की या ऐसे कोई बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जहाँ तक पीटीआई का क़ियादत है, वो पीटीआई की मर्ज़ी कि उनको ज़रूर अपने कायद से तो वो पूछना चाहेंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पीटीआई के साथ इस वक्त वो कुछ मुख्तलिफ रहा है। हमारे नुक्ते नज़र ये अभी तक ये रहा है कि पीटीआई मुस्बत सियासत के बजाय कंसेंसस पैदा करने के बजाय वो रुकावट बनती है। बट उम्मीद ये है, एक बात और वाज़ेह कर दूं कि न फजलुर रहमान के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, न बिलावल ज़रदारी साहब के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, न नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के फ़ायदे और नुकसान पे हम सोच रहे हैं, न इमरान खान के फ़ायदे और नुकसान पे हम सोच रहे हैं, हम मुल्क के फ़ायदे और नुकसान पे सोच रहे हैं। तो आप सहाफ़ी हज़रात के भी ज़हनी सतह इतनी वसी होनी चाहिए कि मुल्क का फ़ायदा और नुकसान आपके मद्देनज़र होना चाहिए, और इस सवाल से ज़रा गुरेज करें। दो मुख्तसर सवाल Thank you. मिलेंगे, दोपहर से वेट कर आप अस्यूम करें कि मैंने ये जवाब दिया आपका सवाल। आप कर्नल भाई फिर आखिरी वहाँ से लेंगे साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का फैसला किया गया था। इसी सिलसिले में आप वकला के पास में गए थे, लेकिन क्या तमाम स्टेक होल्डर्स इस हवाले से एतमाद में लिया गया है? क्योंकि वकला की जानिब से मुल्क की तहरीक चलाने के हवाले से ऐलान किया गया है तरमीम के तरफ। अब मैंने तो ज़रूर वकला से, लीगल फ्रेटर्निटी से, सिविल सोसाइटी से, सियासी जमातों से इनपुट गुफ्तगू वो तो चलता रहा, मज़ीद इनपुट लेना चाहेंगे। जहाँ तक कोई मूवमेंट के सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये अपना पॉलिसी है कि एक दफ़ा हमने जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से वकला का बात सुना और अभी तक भुगत रहे हैं। तो अब इस बार आप इस बात का माफ़ी मुझे देंगे कि जबकि मैं ज़रूर इनपुट लेने के लिए तैयार हूँ, तजवीज़ लेने के लिए तैयार हूँ, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे बड़ों ने एक गलती की और ब्लैक कोट और ब्लैक रोब की धमकी में आके 19वीं तरमीम पास करवाया, वो गलती मैं चाहूँगा कि हम फिर से ना दोहराएं और मुल्क का मफाद के सोचे। अगर वो कंसेंसस के थ्रू हम आइनी तरमीम करके सारे स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेके आइन साजी करके जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, तो वकला का हक है, उनका हक में वो सपोर्ट में जुलूस निकाले या उनके ख़िलाफ़ जुलूस निकाले। ये फ़ैसला आखिर पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब नुमाइंदे दो जमातें उनमें से आपके सामने बैठे हैं, ये हमारे हैं और हमारा कोशिश होगा कि ये कंसेंसस के साथ हो और मुल्क के मुफाद के हवाले से। थैंक यू, थैंक यू। आपने जब भी कहा कि जो हमारी 26 अमेंडमेंट है उसकी बेसिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसके 36 पॉइंट्स हैं, क्या वजह कि तमाम पार्टीज तमाम पॉइंट्स में क्यों नहीं एग्री करती? 2006 से 2024 आ गया, अब तक आप तमाम लोगों को उसके तमाम पॉइंट्स में क्यों एग्री करा रहे हैं? एक तो 26 अमेंडमेंट में कुछ पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, शायद 27 अमेंडमेंट। But no, that I think that is ahistorical and out of context. 18th Amendment को जब हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो हमारा ख्वाहिश, हमारा डिज़ायर तो ये ज़रूर था कि मनो मन लफ्ज़ व लफ्ज़ फुल स्टॉप कमा हम चार्टर डेमोक्रेसी को पास करवाएं। कि जिन वकला के पहले बात कर रहे थे ना, उन ज़मानों में रियासत ने होना था माँ की तरह, और एक मुहिम चला था जो पर्सन स्पेसिफिक था, जो कानून में, आइन में, पाकिस्तान में दहाइयों से मसले थे, वो मसले को एक तरफ रख के हमने पर्सनालिटी स्पेसिफिक एक मेहनत किया कि ये बंदा बहाल होगा और आइन का बालादस्ती होगा। हमने उस प्रोसेस में कुछ कुर्बानियाँ दी, मतलब कुर्बानी इस तरीके से कि 18वीं तरमीम में हमने 80% ऑफ द चार्टर डेमोक्रेसी पे अमल दरामद कर सकें, मगर जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल था वो काम रह गया, नैब रिफॉर्म्स की सवाल था वो काम रह गया, ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन का सवाल था वो काम रह गया। आज इसलिए कि हम 26th अमेंडमेंट की सूरत में जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस बना रहे हैं, इसका ये नहीं मतलब
कि मैंने नैब रिफॉर्म्स या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का किसी कंपोनेंट को भूल चुका हूँ। मैं तो चाहूँगा कि अगर मुमकिन है तो वो तमाम कंपोनेंट्स हम इंकॉर्पोरेट कर सकें। तो दीज थिंग्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस वक्त जो सियासी माहौल बन रहा है, जिसके लिए उम्मीद है कि एक सियासी रास्ता नज़र आ रहा है, वो इस मुल्क में पहली बार हमारी तारीख़ में इंशाअल्लाह ताला हम जुडिशल रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ। उसने बस कंक्लूड कर एक गुजारिश मैं करूँ आपसे। देखिए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये ना पाकिस्तान के आइन का मुतबादल है, ये ना किसी अपनी पार्टी के मंशूर का मुतबादल है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के बीच में एक अखलाकी मुआहिदा है। वो अखलाकी मुआहिदा जब जमहूरियत का आप तसव्वुर करेंगे तो जमहूरियत में तदरीजी इस्लाहात का तसव्वुर होता है। लिहाजा जब भी कोई ऐसे मराहिल आते हैं, जैसे आज आईनी तरमीम का मसला है, कल कोई और मसला आ जाएगा, फिर और मसला आ जाएगा, तो उसमें तमाम सियासी जमातें इस अखलाकी मुआहिदे की तरफ भी देखेंगी कि यहाँ हमने किन बातों पे इत्तेफाक किया था, ताकि उस मसले की तरफ पहुँचने और उस मंजिल को हासिल करने में आसानी हो। तो ये हमारे सियासी अमल के लिए, मुल्क में सियासी फ़ैसलों के लिए एक आसानी पैदा करने वाला अखलाकी मुआहिदा है। जहाँ जहाँ हमें वो ये ताउन दे सकेगा, हम वो ताउन हासिल करेंगे और उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। वाखिर दावाना थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब। घंटों जारी रहने वाली मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम दोनों जमातों का आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक हो गया है और ये इत्तफाक राय तक पहुँचने में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। साथ ही ये भी कहा कि बिलावल से तो मुलाकात हो गई है, कल नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, PTI क़यादत से भी इस्लामाबाद में मुलाकात होगी।